Hello, very good afternoon to all of you. Today I am going to explain a very important chapter, that is analysis of principal stress. This is very important chapter of the strength of material from competitive exam point of view, like GATE and engineering services. So let us listen carefully. So analysis of stress, that is the principal stress. Normally so far we have discussed about the normal stress, that is uniaxial stress. All the three types of stresses, that is tension, compression and shear, may be act together simultaneously on appropriate planes passing through a point in the strained metal as shown below. Actually, so far we have discussed only the uniaxial stress. Uniaxial stress means the stress is acting only on the one direction, like here. Only P force is acting here and no force or no stress is acting on the other plane, and as well as no shear stress is acting. So it is very simple. But actually in a stress system, in an element of a metal, all the three type of stresses like tension, compression and shear stresses act together in actually. So all the three types of stresses, that is tension, compression and shear, may act together simultaneously on appropriate planes passing through a point in the strained material. And like this, suppose ये मेरा कोई बार है, अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट लेता हूँ, कोई एलिमेंट मान लीजिए यहाँ लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, अगर मैं उस पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन मालूम करना चाहूँ तो इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ पर तीनों टाइप की स्ट्रेसेस act together, tension as well as compression and shear stresses. So actually like this, इस तरह से एक्चुअली होता है कि इस प्लेन पे जैसे ये टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं P1 और अनदर प्लेन पे P2 स्ट्रेसेस हैं, and in addition to this shear stresses Q is also acting here. This is my shear stresses Q. This is shear stresses. These are tensile stresses, and tensile stresses on the other plane are also. So P1 is along the x-axis, P2 is along the y-axis, and in addition to this shear stress is also acting. So this is my general stress system. So on critical planes that is inclined, the resultant applied stresses may be more than the applied stresses. हो ये सकता है कि जो ये stresses हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक प्लेन लेता हूँ, तो हो सकता है उस प्लेन पे मैं स्ट्रेसेस जो निकालना चाहूँ वो स्ट्रेसेस इन अप्लाइड स्ट्रेसेस से ज़्यादा हो सकती हैं. सो वी विल कॉल देम क्रिटिकल प्लेन्स. उस क्रिटिकल प्लेन्स पे स्ट्रेसेस जो है रिजल्टेंट स्ट्रेसेस वो अप्लाइड स्ट्रेसेस से ज़्यादा हो सकती है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन से दीज आर द क्रिटिकल प्लेन्स जहाँ पर फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो इन दिस चैप्टर we will use sign conventions like this. So टेंसाइल स्ट्रेसेस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को नेगेटिव लेंगे, लाइक दिस. ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उसको पॉजिटिव, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस जो लगी होगी, सपोज ये अगर ऐसी होती तो हम उसको टेंसाइल स्ट्रेसेस जो हैं वी विल टेक दैम पॉजिटिव साइन लेंगे, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए हम नेगेटिव साइन लेंगे. सो दिस इज साइन कन्वेंशन नंबर 1. अनदर इज angle theta is considered positive when it is in the clockwise direction. So
मान लीजिए इस प्लेन पे हमें स्ट्रेसिस निकालनी है, ये कोई प्लेन है और इस प्लेन पे हमें स्ट्रेसिस निकालनी है कि इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसिस क्या होगी, टेंजेंशियल स्ट्रेसिस क्या होगी, लेट इट बी पी टी एंड पी आर द नॉर्मल। सो ये एलिमेंट जो है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, उसका इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल है, दैट इज थीटा। सो आई हैव टू फाइंड आउट द normal and tangential stress on this particular plane which is inclined at theta with this vertical, that is normal to the x-axis. So this theta will be considered as positive अगर ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। हेयर दी थीटा, ये प्लेन क्या है, ये प्लेन जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा ये इस वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इस वर्टिकल प्लेन से। नाउ दिस प्लेन इज, ये थीटा हमारा इस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो वी विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर कोई प्लेन लेता, सपोज ये कोई प्लेन लेता और इस प्लेन पे मुझे स्ट्रेसिस निकालनी होती जो कि इस वर्टिकल से ये थीटा एंगल करा रहे होते, सो इन दैट केस इस वर्टिकल प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग जो थीटा है वो इधर से क्लॉकवाइज रोटेशन में हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका। सो अगर थीटा क्लॉकवाइज रोटेशन में है, वो प्लेन जिस पे हम स्ट्रेस निकालने से आते हैं वो वर्टिकल के साथ थीटा जो एंगल बना रहा है वो उसकी टेंडेंसी उसको क्लॉकवाइज रोटेशन की होती है, दैट वी विल कंसीडर इट इज नेगेटिव। सो theta will be, my theta is considered as positive when it is in the anti-clockwise direction, और clockwise direction में होगा तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। थर्ड का साइन कन्वेंशन इज दैट for shear stresses, what he says, a shear stress acting on a positive face of an element is considered positive if it acts in the positive direction of one of the coordinate axis and negative if it acts in the negative direction of one of the axis. What does it mean? Suppose ये मेरा कोई क्यूब है जिसपे स्ट्रेस सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्यू स्ट्रेसिस हैं, क्यू है, तो पॉजिटिव फेस कौन सा होगा? दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। तो बेसिकली ये जो फेस होगा, दिस फेस, दिस विल बी पॉजिटिव फेस। वाई इट इज पॉजिटिव? क्योंकि ये इसके एक्स एक्सिस के इससे पॉजिटिव साइड में है, तो हम इसको पॉजिटिव फेस बोलेंगे। और इस ओरिजिन के ऊपर जो ये फेस है, ये वाला, इसको भी हम पॉजिटिव फेस बोलेंगे। लाइक दिस, अगर मैं इसको अलग तरीके से समझाऊं तो इट विल बी बेटर। सपोज मैं ये ओरिजिन जो है यहां पर लेता, दिस इज माई ओरिजिन विच इज सेंटर ऑफ दिस क्यूब, और ये मेरा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ये जो ओरिजिन है तीनों एक्सिस का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस क्यूब, दिस ब्लॉक। सो ये मेरा जो फेस है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई, ये जेड एक्सिस है, इसका नेगेटिव साइड ये बन जाएगा। वाई का पॉजिटिव साइड ये है, इसका नेगेटिव साइड ये बन जाएगा।
तो अगर मैं इस प्लेन को कंसीडर करता हूं, से मैं इस प्लेन को कंसीडर करता हूं, माई दिस प्लेन इज ऑन द दिस, इस साइड में ओरिजिन के एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, अगर ये इस साइड में होता है, वह ओरिजिन के इस साइड में होता है, तो इसको नेगेटिव फेस बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर ये फेस मेरा एक्स एक्सिस के इस डायरेक्शन में है, वी विल कंसिडर एट ए पॉजिटिव, क्योंकि ये मेरा एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इस फेस को मैं पॉजिटिव फेस बोलूंगा, पॉजिटिव फेस। ऑन द अदर हैंड, ये जो वाई एक्सिस जो है, ये ओरिजिन के ऊपर है, ये वाला जो मेरा प्लेन है, दिस माई प्लेन इज, ये पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस जो ओरिजिन से ऊपर है, तो इसको भी मैं पॉजिटिव फेस बोलूंगा, पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड, ये वाला जो फेस है नीचे वाला, ये ओरिजिन के नीचे है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, दिस प्लेन इज बिलो द ओरिजिन, ये वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, तो इसको मैं नेगेटिव फेस बोलूंगा। और क्योंकि ये ओरिजिन के इस साइड में है, अलोंग द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूं, मान लीजिए ये वाला जो प्लेन है मेरा, दिस प्लेन इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, इसको मैं नेगेटिव फेस बोलूंगा, दिस इज माई नेगेटिव फेस। एंड अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात करता हूं, तो ये ओरिजिन के इस साइड में है, जेड के पॉजिटिव साइड में है, तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, ये पॉजिटिव फेस रहेगा, और इसके बैक साइड वाला ये प्लेन जो है, ये जेड एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, तो ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन, इसको नेगेटिव फेस बोलेंगे। तो पॉजिटिव फेस जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के इस साइड में जो फेस होगा, दैट इज पॉजिटिव फेस, इधर नेगेटिव फेस। वाई एक्सिस से ऊपर होगा पॉजिटिव फेस, नीचे होगा नेगेटिव फेस। जेड एक्सिस ओरिजिन के इस साइड में पॉजिटिव फेस, अपोजिट साइड नेगेटिव फेस। तो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब नेगेटिव एंड पॉजिटिव फेसेस। वो ये बोलता है कि अगर पॉजिटिव फेस में नाउ दिस इज माई, ये मेरा पॉजिटिव फेस है, तो इस फेस पे जो स्ट्रेस लगा है पॉजिटिव फेस पे, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द एक्सेस, क्योंकि ये अलोंग द वाई एक्सेस है, जो कि वाई एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसका नेगेटिव डायरेक्शन नीचे होता, वाई एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, दिस क्यू इज गोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सेस। बेसिकली ओरिजिन इसके सेंटर में यू कैन से। तो ये पॉजिटिव फेस पे जो स्ट्रेस लगा है, सो वी विल कंसिडर इट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव फेस पर शेयर स्ट्रेस लगा है, दैट इज एक्टिंग आल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पॉजिटिव फेस पे भी है और वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसकी अलोंग है, तो इस शेयर स्ट्रेस को मैं पॉजिटिव बोलूंगा। सिमिलरली ये वाला मेरा फेस है जो कि ओरिजिन के ऊपर है, एंड ये पॉजिटिव फेस है, और इसमें जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज आल्सो ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस जो मेरा पॉजिटिव फेस है उसके पैरेलल है ये। तो पॉजिटिव फेस पे भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द एक्सेस। ये पॉजिटिव फेस पे भी है एंड इट इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द एक्सेस, वाई एक्सेस की तरफ है ये पॉजिटिव फेस पे भी एंड इट इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द एक्सेस। तो इसको हम पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर ये मेरे दोनों पॉजिटिव फेस हैं, इस पे ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस जो मेरा वाई एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन उसमें ना होकर नीचे की तरफ है, जो कि वाई एक्सेस का नेगेटिव डायरेक्शन है, और अगर इस पॉजिटिव फेस पे अगर इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होता, जैसा कि इस केस में है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव शेयर स्ट्रेसेस। सो दीज आर माय नेगेटिव शेयर स्ट्रेसेस। ऑन द अदर हैंड, अगर वो नेगेटिव फेस पे है, क्योंकि ये वाला वो जो मेरा फेस है, इस फेस पे ये नेगेटिव फेस है, दिस इज माय नेगेटिव फेस। ये पॉजिटिव फेस है, ये नेगेटिव फेस है। अगर इस नेगेटिव फेस में शेयर स्ट्रेस
नेगेटिव ही डायरेक्शन में लगी हुई है। सिमिलरली ये भी मेरा पॉजिटिव फेस, ये नेगेटिव फेस है। इस फेस पे भी जो शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन है वो टुवर्ड इस तरह से है, इसमें इस तरह से है। तो ये एक्स एक्सिस के अपोजिट है। जो वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो एक्स है, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर नेगेटिव फेस पे भी है, अगर नेगेटिव ही डायरेक्शन में है, तो भी उसको पॉजिटिव शेयर स्ट्रेसेस बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव फेस है, फेस भी पॉजिटिव है और उसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। या नेगेटिव फेस पे भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस। अगर नेगेटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शन में है तो भी हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे। अब इन दिस केस यहां पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये मेरा नेगेटिव फेस है, ये पॉजिटिव फेस है, बट मेरा शेयर स्ट्रेस दैट इज एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो अगर नेगेटिव फेस है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है इन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो भी उसको नेगेटिव बोलेंगे। सिमिलरली ये मेरा नेगेटिव फेस है और नेगेटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसको भी हम नेगेटिव शेयर स्ट्रेसेस बोलेंगे। सो ये शेयर स्ट्रेस a shear stress acting on a positive face of an element is considered a positive if it acts in the positive direction of one of the coordinate axis and negative if it acts in the negative direction. Positive face पे positive direction of one of the coordinate axis, positive direction on the positive face. तो अगर वो पॉजिटिव फेस है और उस फेस पे शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। या अगर वो नेगेटिव फेस पे भी है और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसा कि ये नेगेटिव फेस पे नेगेटिव ही डायरेक्शन में है, इस नेगेटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो भी उसको पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस से बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर पॉजिटिव फेस पे है लेकिन उसका डायरेक्शन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में है, जैसे कि यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव तरफ जा रहा है, ये क्यू जो है वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, इसको नेगेटिव बोलेंगे। सिमिलरली है मेरा नेगेटिव फेस है बट पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन। सो पॉजिटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन, ये बहुत पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन अगर कोई एक भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शन या नेगेटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन हो, तो उसको नेगेटिव लेंगे। सो similarly a shear stress is acting on the element is a positive if it acts in the negative direction. Now इसमें होता क्या है, अगर इसको टू डायमेंशन में हम शो करेंगे तो पॉजिटिव स्ट्रेसेस को इस तरह से शो करेंगे, लाइक दिस। इसको जब हमने टू डायमेंशन में शो किया तो इसको लाइक दिस, एज आई डिस्कस इन माई अर्लियर लेक्चर, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस हो गया। ये जो ब्लॉक है इसको इस तरह से रोटेट करेगा और ये इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब व्हाट विल हैपन, जब हम इस तरह की स्ट्रेसेस लगेंगी, तो आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इसकी डायगोनल पे जो स्ट्रेसेस आएंगी वो इस तरह से होंगी कि ये इसको इस तरह से स्ट्रेच करेगा। आई मीन ये इस तरह से यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस लगेंगे इसमें।
सो ये वाला जो प्लेन है मेरा, यहाँ पर इसको स्ट्रेस करने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो डायगोनल है यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ये कंप्रेस करेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इसका जो डिफॉर्म शेप होगा वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो एंगल है ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जो पॉजिटिव फेसिस पे जो पहले 90 डिग्री एंगल था, अब ये 90 नहीं रहेगा, ये 90 से कम हो जाएगा। सपोज ये एंगल यहाँ से इतना कम हुआ, यहाँ से यह, दिस इज हाफ बाई गामा 2 एंड दिस इज आल्सो बाई हाफ बाई गामा 2, तो टोटल 95/2, 90 माइनस दिस गामा बाई 2 और गामा बाई 2 गामा। तो एक्चुअल अब ये एंगल हो जाएगा जो कि पहले 90 डिग्री था, यहाँ भी ये एंगल रिड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में जो पॉजिटिव शेयर स्ट्रेसेस जब लगती हैं तो यहाँ पर जो एंगल है ये रिड्यूस हो जाता है। एंड अकॉर्डिंगली जो मेरा नेगेटिव फेसिस हैं, ये वाले जो फेसिस हैं यहाँ पर, वहाँ पर एंगल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये है, यहाँ ये नेगेटिव फेसिस हैं मेरे कोरस्पॉन्डिंग, इधर यहाँ पर ये नेगेटिव फेसिस जो हैं, ये दीज आर माई नेगेटिव फेसिस, तो यहाँ पर ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरी नेगेटिव स्ट्रेसेस हैं इस तरह से, वन मोर थिंग क्या है कि जो पॉजिटिव शेयर स्ट्रेसेस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करती हैं। मान लीजिए ये मेरा शेयर स्ट्रेस है, तो ये इट विल ट्राई टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, इस क्यू को जो मैं लूंगा यहाँ पर। नाउ दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव शेयर स्ट्रेस। नेगेटिव शेयर स्ट्रेसेस में इस तरह से होगा, ये दोनों शेयर स्ट्रेसेस इस यहाँ पर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड ये दोनों यहाँ पर इसको खींचेंगी, मतलब ये अपोजिट हो जाएगा। सो इट विल ट्राई टू, यहाँ पर ये बीच में क्रैक होने की कोशिश करेगा ये प्लेन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस लगेगी वो इस तरह से लगेगी, ये दोनों इसको खींचने की कोशिश करेगा, एंड इस डायगोनल में कंप्रेसिव फोर्स आएगा। सो ये इधर से इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा और इधर से इसको टेंसाइल फोर्स लगेंगे यहाँ पर। सो इन दिस केस डिफॉर्म्ड शेप मेरी कुछ इस तरह से हो जाएगी। जब इसको हम खींचेंगे बहुत सारी टेंसाइल फोर्स लगेगा तो ये शेप हो जाएगी। इस केस में जो मेरे पॉजिटिव फेसेस हैं उसमें एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ये जो दोनों पॉजिटिव फेस मेरे लगे हुए हैं यहाँ पर एंगल इंक्रीज हो जाएगा। सपोज ये मेरा एंगल 90 डिग्री था, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये π/2 90 में से गामा इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव शेयर स्ट्रेसेस के केस में पॉजिटिव फेसिस में जो एंगल है दैट विल डिक्रीज, एंड नेगेटिव शेयर स्ट्रेसेस के केस में पॉजिटिव फेस में जो एंगल है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू यूनिएक्सल स्ट्रेस सिस्टम। अभी तक जो हमने देखा था यूनिवर्सल स्ट्रेस, सपोज ये मेरा ब्लॉक है जिसमें इस ओनली इन दोनों इस प्लेन पे हमारा स्ट्रेस लगा हुआ है, इसको हम यूनिएक्सल हैं, एक ही एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस लगा हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेस होने, मुझे इस प्लेन पे यहाँ स्ट्रेस निकालनी है। तो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सेक्शन PQ इस प्लेन पे ये हमारी स्ट्रेस P/A लगा है। अगर मैं यहाँ कोई प्लेन लेता हूँ, सपोज दिस प्लेन जो कि इस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और उस प्लेन पे मुझे स्ट्रेसेस निकालनी है कि उस प्लेन के नॉर्मल में कितना स्ट्रेस रहेगा और उसके टेंजेंशियल पे ये जो फेस है यहाँ पर स्ट्रेस कितना रहेगा। अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा ये फोर्स है ये यहाँ पर इस प्लेन पे इस तरह से स्ट्रेसेस लगेंगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस, जिसकी वैल्यू जो कि सेंट्रॉइड पे ये फोर्स मेरा P यहाँ पर लगा हुआ, दिस फोर्स P, दिस डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस बार का जो भी रहेगा लाइक दिस, ये जो एरिया है दिस P अपॉन ए, वो दैट विल बी माई स्ट्रेस, और वो जो स्ट्रेस P अपॉन ए है इसमें यूनिफॉर्मली एक्ट करेगी यहाँ पर इसी डायरेक्शन में P में, इस तरह से ये मेरी स्ट्रेस है जिसकी वैल्यू P अपॉन ए है, दिस लोड अपॉन एरिया, वो इस प्लेन पे ऐसी लगेगी। अब मुझे इसको निकालना है कि इस प्लेन के नॉर्मल में यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके टेंजेंशियल में फोर्स कितना आएगा, तो उसको निकालने के लिए फॉर दैट दिस इज माय फोर्स P विच इज एक्टिंग ऑन द स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ हेयर, एंड नाउ अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरा थीटा रहेगा, जो कि मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P, दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड ये वर्टिकल का नॉर्मल ये है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। एंड अकॉर्डिंगली जो स्ट्रेसेस होंगी दिस एन अपॉन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा इस प्लेन का, इस प्लेन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा उसको डिवाइड करेंगे तो P स्मॉल pn आ जाएगा, और ये जो प्लेन का एरिया को डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रेसेस आ जाएंगे हमारी। सो दिस इज माय लोड P एंड दिस इज एंगल, ये नॉर्मल फोर्स है एंड दिस इज टेंसाइल फोर्स। अकॉर्डिंगली उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेसेस आ जाएंगी। सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेक्शन PQ may be resolved into two components, a normal force N that is acting normal to the plane, secondly a tangential force T acting tangential to the plane, this T. Now tangential force is equal to, अगर हम इसको कंपोनेंट लेंगे क्योंकि ये एंगल थीटा है हमारा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो ये n की वैल्यू इसको जब हम रिजोल्व करेंगे तो ये P cos थीटा हो जाएगा, दिस विल बी माई P cos थीटा, एंड अगर इसको हम इधर रिजोल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट P sin थीटा हो जाएगा इसका। सो माई दिस फोर्स N इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू P cos थीटा एंड टेंजेंशियल फोर्स इज P sin थीटा। द स्ट्रेसेस आर शोन इन द sorry for the disturbance, these stresses are shown in the positive directions, so Pn is positive। अगर ये हमारा इस डायरेक्शन में Pn लगा हुआ है दिस स्ट्रेस, इसको टेंसाइल है, ये इसको हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, एंड Pt is positive when it tends to rotate the element in a clockwise direction में। इसमें क्या होगा, हम Pt के डायरेक्शन को ऊपर लिया है इधर, तो ये जो इस एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर शेयर स्ट्रेसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर ये नीचे की तरफ होता तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन की करता, उस केस में उसको नेगेटिव लेते हैं। सो शेयर स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस अगर एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी में है, वी विल कंसीडर इट पॉजिटिव, अदरवाइज व्हेन इट इज एक्टिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी विल टेक इट इज नेगेटिव। सो हेयर हमने इसको पॉजिटिव में एज्यूम किया है कि ये ऊपर की तरफ लगा है जो कि इस एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो हमने दोनों पॉजिटिव लिया, Pn और Pt दोनों का पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने इसको लिया है। द स्ट्रेसेस the stresses are shown in the positive direction. Pn is positive in tension and P2 is positive when it tends to rotate the, it tends to counterclockwise rotation of the material, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। नाउ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन PQ इज इक्वल टू A अपॉन cos थीटा,
ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि ये इसका एरिया ए है, दिस एरिया इज ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो अगर हमें इस प्लेन पे एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसका एरिया दिस साइड ए अपॉन इसका एरिया इज इक्वल टू cos थीटा। सो इस प्लेन का जो एरिया आएगा दैट विल बी ए अपॉन cos थीटा। सो ये जो प्लेन पी क्यू है इसका एरिया ए अपॉन cos थीटा आएगा। सो एरिया ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ए cos थीटा, वेयर एरिया ऑफ द ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द नॉर्मल सेक्शन, एंड पी एन इज इक्वल टू जो एन फोर्स लगा है दैट इज पी cos थीटा डिवाइडेड बाय द एरिया। क्योंकि ये मेरा फोर्स जो है इस वैल्यू जो है, ये P की वैल्यू जो है, ये नॉर्मल n इज इक्वल टू, वेन हमने जब इसको रिजोल्व किया तो n इज इक्वल टू ये थीटा एंगल है तो ये P cos थीटा हो जाएगा, एंड दिस विल बी P sin थीटा। इसको जब हम रिजोल्व करेंगे अलोंग दिस प्लेन एंड नॉर्मल टू दिस प्लेन, सो दिस पीस को P cos थीटा जो n की वैल्यू है, इसको जब इस प्लेन के इस एरिया से डिवाइड करेंगे विच इज a अपॉन cos थीटा, here P cos थीटा को a अपॉन cos थीटा, तो दिस विल बी P अपॉन a cos स्क्वायर थीटा, एंड P अपॉन a, व्हाट इज P अपॉन a, दिस इज स्मॉल p स्ट्रेस, P cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये हमारा। दिस P अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, दिस इज स्मॉल p। सिमिलरली PT इज इक्वल टू T अपॉन A, जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स है, दिस T इज इक्वल टू ये हमारा, दिस विल बी थीटा P cos थीटा, एंड दिस इज P sin थीटा। इसको जब हम रिजोल्व करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इसके नीचे की तरफ लग रहा है तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो हमने इनिशियली अज्यूम किया था इसका ऊपर की तरफ लिया था ताकि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, बट ये एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है, इसका जो कंपोनेंट आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स वाई वी विल टेक इट एज ए नेगेटिव, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में है। जो डायरेक्शन हमने इनिशियली अज्यूम किया अगर उसके अपोजिट में आ रहा है टेंजेंशियल फोर्स, इट मीन्स इट इज नेगेटिव, सो दैट विल बी माइनस T अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज माई P sin थीटा डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQ, इट विल बी P upon A sin theta cos theta minus, so minus this is my P, and sin theta cos theta is equal to, as we know, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, so sin theta cos theta is equal to sin 2 theta divided by 2, so हम यहाँ पर sin 2 theta divided by 2 यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पर, so this will be minus P upon T sin 2 theta. Now this is my normal stress Pn and this is tangential stress. अगर मुझे resultant stress निकालना है so that will be Pn square upon Pt. ये मेरा टेंजेंशियल फोर्स है, ये नॉर्मल है। अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों का जो आएगा पी एन स्क्वायर नॉर्मल स्क्वायर प्लस P टेंजेंशियल स्क्वायर, इन दोनों का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट विल बी रिजल्टेंट। सो P रेजिस्टेंस स्ट्रेस इज इक्वल टू P नॉर्मल स्क्वायर प्लस P टेंजेंशियल स्क्वायर, सो द वैल्यू विल बिकम P cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू P cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस P sin थीटा स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसमें से P cos स्क्वायर थीटा अगर बाहर निकालूंगा तो दिस विल बी P cos थीटा एंड अगेन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, एज वी नो दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू 1, सो इट विल बी P
कोस थीटा, तो हमारा जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस आएगा वो पी कोस थीटा इस केस में आएगा. नाउ वेरिएशन ऑफ पी एन पी टी एंड पी आर विद थीटा. थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी या थीटा की वैल्यू जैसे जैसे घटेगी, तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और उनमें क्या वेरिएशन होगा या रिजल्टेंट स्ट्रेसेस पे वो हमें मालूम करना है. सो नाउ नॉर्मल स्ट्रेस जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू पी कोस स्क्वायर थीटा, उसका फार्मूला है जैसा कि अभी हमने निकाला है. दिस इज माई, so in this case this is my p cos square theta. नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो p cos square theta ही है, एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू माइनस p बाई 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा. ये वैल्यू आ गई हमारी. सो So formula of the normal stress is P cos square theta. ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला है. अगर मैं इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू जीरो लेता हूँ, व्हेन आई पुट वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा प्लेन था जिसमें मैंने स्ट्रेसिस कैलकुलेट किया है, ये थीटा जीरो कब होगा? जब ये इंक्लाइन प्लेन इस वर्टिकल पे आ जाएगा. थीटा की वैल्यू इस पे जीरो होगी, इस पे थीटा की वैल्यू थीटा है. तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन थीटा को जब मैं जीरो पुट करूंगा तो इट विल बी पी कोस स्क्वायर जीरो. कोस जीरो 1 होता है तो इट विल बी पी. मतलब ये हुआ कि जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो स्मॉल पी के इक्वल हो जाएगी. अगर थीटा की वैल्यू मैं जीरो की बजाय 45 डिग्री पुट करता हूं, सो इट विल बी पी एन इज विल बी इक्वल टू पी कोस स्क्वायर 45 डिग्री. सो कोस स्क्वायर 45 डिग्री विल बी पी इंटू 1/2. मतलब जब थीटा की वैल्यू माइनस 45 डिग्री रहेगी तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी p/2. और अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करता हूं तो p नॉर्मल स्ट्रेस क्या आएगा? p कोस स्क्वायर 90 डिग्री. कोस 90 जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट करूं तो वो इस तरह से रहेगा. दिस इज माई, ये मेरा दिस इज माई एक्स एक्सेस. इसमें मैंने ये थीटा को बता रहा है, ये थीटा को डिनोट कर रहा है. तो थीटा और ये जीरो है, इधर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इधर थीटा की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में है. ये वाली डायरेक्शन मेरी शेयर स्ट्रेस बताएगा. तो इसमें क्या है कि मेरा ये वाला जो कर्व है, दिस कर्व, ये नॉर्मल स्ट्रेस को बता रहा है. जब थीटा की वैल्यू जीरो में पुट करता हूं फार्मूले में, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू पी. मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, जो पी एन है नॉर्मल स्ट्रेस, वो उसकी वैल्यू पी के इक्वल हो जाती है. और जब मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करता हूं तो नॉर्मल स्ट्रेस मेरी p/2 हो जाएगी. मतलब ये थीटा जब 45 डिग्री है, ये मेरा स्ट्रेस को बता रहा p को, सो इट विल बी हाफ ऑफ दिस p/2.
ये इसको अगर मैं पी से प्लॉट करूं, अगर ये पी है तो इसका ये हाफ है। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये पी बाई 2 होगी। एंड व्हेन थीटा की वैल्यू जब मैंने 90 पुट किया यहाँ पर, तो नॉर्मल स्ट्रेस मेरा 0 हो गया है। मतलब व्हेन आई पुट थीटा की वैल्यू जब 90 पुट करूंगा, तो ये मेरी जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो इस तरह से हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर थीटा मेरा पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता, नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अगर अगर ये इस डायरेक्शन में थीटा लिया, इनक्लाइन प्लेन, अगर मैं कोई ऐसा प्लेन लेता जिस वो कि वर्टिकल के साथ इस डायरेक्शन में एंगल बनाता, ये अगर एंगल होता थीटा, और मुझे इस प्लेन पे स्ट्रेसिस निकालनी होती, तो इस केस में मैं थीटा को नेगेटिव लूंगा। अब मैंने इधर का जो प्लेन जो कि इस साइड में रोटेट किया है, इस थीटा को पॉजिटिव लिया है। तो अगर मैं इस केस में ऐसे लूंगा, मान लीजिए मेरा प्लेन इस तरह से है, और मैंने इस प्लेन को ऐसे ना लेके इस डायरेक्शन में लिया, और थीटा इस वर्टिकल के साथ एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना को इस डायरेक्शन में ऐसे थीटा बनाता, और मुझे इस प्लेन पे स्ट्रेसिस निकालनी होती नॉर्मल और टेंजेंशियल, तो उस केस में थीटा को मैं माइनस में लूंगा। सो अगर मेरा थीटा 45 डिग्री इधर प्लस है, थीटा की वैल्यू इधर माइनस 45 डिग्री होती, तब मैं इस फार्मूले में पुट करता, सो मेरी वैल्यू क्या होती? सो माई नॉर्मल इज पी कोस स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी पी कोस स्क्वायर माइनस 45 डिग्री। सो कोस 45 मीन्स कोस माइनस 45 डिग्री मीन्स कोस 45 डिग्री, so it will be p cos minus theta is equal to cos theta, it will be p cos square 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू p बाई 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा थीटा माइनस 45 डिग्री है, उस केस में भी नॉर्मल स्ट्रेस मेरी पॉजिटिव ही आएगी p बाई 2। सो इट विल बी अगेन भी इसके इस साइड में यहाँ पर आएगा, ये इस विल बी यहाँ। एंड सिमिलरली अगर मैं थीटा मेरा 90 डिग्री होता, थीटा माइनस 90 डिग्री कहाँ होगा? इस प्लेन पे आ जाएगा। जब ये थीटा इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, ये मेरा माइनस 90 डिग्री होगा। अगर मेरा ये प्लेन इधर मूव करके इधर रोटेट करके ऐसे आ जाता, तो ये थीटा प्लस 90 डिग्री, अगर मैं प्लेन को बोलूँगा ये प्लेन होगा, ये थीटा इज इक्वल टू माइनस डिग्री, ये प्लेन होगा। सो व्हेन आई पुट द वैल्यू पी कोस स्क्वायर माइनस, जब मैं ये पुट करूँगा यहाँ पर, so since Pn is equal to P cos square minus 90 डिग्री, सो cos माइनस 90 मतलब cos 90, उसका स्केयर करेंगे, cos 90 जीरो होता है, तो इट विल बी जीरो। मतलब ये होगा जब cos थीटा की वैल्यू माइनस 90 होगी, तो नॉर्मल स्ट्रेस माई जीरो हो जाएगी। तो ये मेरा जो थीटा के वन थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस इस तरह से बिहेव करेंगी मेरी। सो ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस का कर्व हो जाएगा। अगेन अब टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जो है वो कैसे बिहेव करेंगे? एज थीटा वेरीज करेगा, जब थीटा मेरा वेरी करेगा तो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कैसे आएंगे? सो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस का फार्मूला ये है कि पी टी इज इक्वल टू माइनस पी बाई 2 साइन थीटा, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। दिस इज माई फार्मूला फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, माइनस पी बाई 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा। सो ये मेरा फार्मूला है। अब इस फार्मूले में
नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेसेस विद द वेरिएशन ऑफ थीटा। जब थीटा की वैल्यू जीरो है तो नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या आएगी, माइनस पी बाई टू साइन टू थीटा की, यहाँ मैं जीरो पुट कर दूंगा तो ये साइन जीरो आ जाएगा, मतलब ये जीरो आएगी। मतलब जब मेरा थीटा जीरो है तो जो मेरा टेंजेंशियल स्ट्रेस है जिसका ये वाला कर्व है वो यहाँ पर जीरो रहेगा। जब मैं थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 45 डिग्री पुट करूंगा तो माइनस पी बाई टू, यहाँ साइन टू थीटा की जगह साइन 90 आ जाएगा, साइन 91 होता है, सो इट विल बी माइनस पी बाई टू। मतलब ये हुआ कि जब मेरा थीटा पॉजिटिव 45 डिग्री है तो पी टी नेगेटिव माइनस पी बाई टू आएगा, ये दिस इज माई पी बाई टू। हियर द वैल्यू इज दिस पी टी इज इक्वल टू पी बाई टू। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये पी बाई टू है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे मिला दूंगा क्योंकि ये इसके नीचे की तरफ है, इसलिए ये नेगेटिव को मैंने यहाँ प्लॉट किया। अगर ये ऊपर होता तो पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि ये माइनस पी बाई टू है तो माइनस पी बाई टू टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को मैंने जब प्लॉट किया तो मैंने उसको नीचे की तरफ लिया है, तो ये माइनस पी बाई टू आएगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो यहाँ जब मैं पुट करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब जब थीटा इज इक्वल टू 90 तो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ये जीरो हो जाएंगी। तो मैं जब इसको मिलाऊंगा तो ये मेरा कर्व बन जाएगा जो कि टेंजेंशियल स्ट्रेसेस के बिहेवियर को बता रहा है व्हेन थीटा इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए मेरा थीटा माइनस 45 डिग्री होता, मतलब जो कि इस प्लेन की बजाय ये यहाँ कोई प्लेन हो जाए जब थीटा नेगेटिव होता और इस प्लेन पे मुझे निकालनी होती नॉर्मल स्ट्रेसिस और टेंजेंशियल स्ट्रेसिस। इस प्लेन पे जब ये थीटा इधर वेरी करता है तो पॉजिटिव, अगर थीटा इसके इधर डायरेक्शन में आता हो नेगेटिव। सो अगर ये माइनस 45 डिग्री को इस प्लेन पे निकालना होता मुझे, थीटा विज माइनस 45 डिग्री है, जब मैं यहाँ पुट करूंगा सो माइनस साइन माइनस 90 मीन्स माइनस साइन 90, तो उसकी वैल्यू प्लस पी बाई टू आ जाएगी। मतलब जब मैं थीटा माइनस 45 ले लूँगा तो मेरी नॉर्मल जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पी बाई टू। पॉजिटिव को मैं ऊपर प्लॉट करूँगा तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा। सो मैं इसको यहाँ ऐसे मिला दूंगा। मैं थीटा को माइनस 90 डिग्री करूँगा, माइनस 90 डिग्री मीन्स थीटा माइनस 90 डिग्री कहाँ होगा, जब ये इधर घूम के इस प्लेन पे आ जाएगा। When I put the minus 90 then again it will be 0, मतलब ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये जो मेरा कर्व है ये टेंजेंशियल स्ट्रेसिस के बिहेवियर को बता रहा है, जैसे जैसे थीटा मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। ये कर्व मेरा नॉर्मल स्ट्रेसिस को बता रहा है, जैसे जैसे थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसिस विद द वेरिएशन ऑफ थीटा बता रहा है अभी। नाउ इसमें क्या होगा कि फ्रॉम दिस कर्व व्हेन थीटा इज, जो मेरा टेंजेंशियल स्ट्रेसिस है, टेंजेंशियल स्ट्रेसिस वो मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, टेंजेंशियल स्ट्रेसिस मेरा मैक्सिमम जो पीटी मैक्सिमम जो हो रहा है दैट इज पी बाई टू। जब मेरा थीटा जो है, जब थीटा मेरा प्लस 45 डिग्री है, मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये प्लेन है, ये थीटा जो है ये वर्टिकल के इस डायरेक्शन में ये प्लेन है, इसके नॉर्मल में ड्रॉ किया तो ये एंगल जो है विच इज इक्वल ऑलवेज थीटा। इस केस में ये मेरा जो प्लेन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर ये थीटा को पॉजिटिव 45 डिग्री लूँगा तो यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो माइनस पी बाई टू आ रहा है, मतलब ये इसका पॉजिटिव ऊपर की तरफ डायरेक्शन ना होकर ये नीचे की तरफ है, क्योंकि ये इसके पॉजिटिव फेस पे इसके नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है।
अगर ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो ये माइनस माना जाएगा। अगर ये इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करता, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता तो पॉजिटिव लेंगे। सो हेंस एज पी टी इज इक्वल टू पी बाई टू, न्यूमेरिकली दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो पी बाई टू आ रहा है, एंड उसकी वैल्यू जो है थीटा प्लस 45 डिग्री पे माइनस पी बाई टू आ रहा है। माइनस पी बाई टू का मतलब ये है कि ये जो हमारा डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ है, जो हमने अज्यूम किया था उसके अपोजिट है। तो यहां पर जो मेरी शेयर स्ट्रेसेस आई है ये इस डायरेक्शन में आएगा, वैल्यू इज पी बाई टू। एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस कितना आएगा यहां पर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज आल्सो इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू जब 45 डिग्री है मेरा प्लस 45 है तो नॉर्मल स्ट्रेसिस मेरा पी बाई टू आ रहा है यहां पर, इट इज आल्सो इक्वल टू पी बाई टू। तो मेरा जो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस है वो माइनस पी बाई टू आ रहा है, एंड ये पी बाई टू आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो टेंसाइल में, टेंशन में डायरेक्शन में है, जो हमने अज्यूम किया वो सही है। सो अगर हम इसको प्लॉट करें यहाँ पर तो इट विल बी लाइक दिस। इस प्लेन पे ये जो है जब थीटा 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू पी बाई टू, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये मेरा पी बाई टू हो गया, माइनस है तो नीचे की तरफ, और ये प्लस है तो ऊपर की तरफ, ये भी मेरा पी बाई टू आएगा। सो ये दो वैल्यू आ गई है। अगर मुझे यहाँ पर माइनस, ये मेरा क्या है थीटा जो है, ये थीटा इधर जा रहा है तो मतलब प्लस 45 डिग्री है। अगर मुझे इसके इधर ये थीटा मुझे निकालना पड़ता, ये थीटा माइनस 45 डिग्री है। माइनस 45 डिग्री को जब मैंने पुट किया तो मेरी वैल्यू जो है यहाँ पर थीटा माइनस 45 डिग्री है तो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ भी पी बाई टू है, एंड दैट इज पॉजिटिव, मतलब टेंसाइल है वो। बट यहाँ पर जो मेरा शेयर स्ट्रेसिस है वो पॉजिटिव है। ये जो शेयर स्ट्रेसिस है ये पॉजिटिव है, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेसिस जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि वो मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वो उसको इट हैज़ टू रोटेट द एलिमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, उस तरह का शेयर स्ट्रेसिस यहाँ आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ ये ऐसे आएगा, क्योंकि ये उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये मेरे दो प्लेन पे मेरी शेयर स्ट्रेसिस ये मुझे पता चल गया है। नाउ अगर मुझे ये स्ट्रेस एलिमेंट इसका निकालना है तो मैं इसके अदर फेस पे निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर ये p बाई टू है तो सेम ऐसा ही टेंजेंशियल स्ट्रेस यहाँ p बाई टू आएगा, और अगर ये p बाई टू यहाँ पर है तो ऐसा ही p बाई टू यहाँ आएगा फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सेक्शन। क्योंकि ये मेरा p बाई टू ऐसे लग रहा है यहाँ पर, तो इधर p बाई टू ऐसे लगेगा जो कि इसको इस तरह से रोटेट करेगा। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसिस के अकॉर्डिंगली अगर ये मेरा शेयर स्ट्रेसिस ऐसे लगा हुआ है तो इसको बैलेंस करने के लिए ये इधर लगेगा। सो ये मेरा स्ट्रेस एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। मतलब जो वैल्यू आएगी नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम कब हो रही है, जब थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल स्ट्रेसिस है वो मैक्सिमम इसी प्लेन पे जिस पे p एक्ट कर रहा है वहीं पर मैक्सिमम होगी। ऑब्वियसली क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ लग रही है, ये मैक्सिमम इसी प्लेन पे होगी जिस पे ये एक्ट कर रहा है। अगर इसी के किसी दूसरे प्लेन पे हम देखें तो वैल्यू वो कम आएगी, जो कि हमारा कारो ये बता रहा है। एंड जब थीटा पॉजिटिव इस प्लेन पे हम लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, एंड व्हेन थीटा इज माइनस 45 डिग्री इट विल बी दिस। सो इसी स्ट्रेस को जो कर्व शेप में इसने स्ट्रेस एलिमेंट को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो मेरा ये जो है ये स्ट्रेस एलिमेंट रहेगा।
Hence, all surfaces inclined at 45 degree to the axis of the pull are subjected to maximum shear stresses. But वहाँ पर shear stresses maximum आएगी, उसकी वैल्यू P/2 आएगी. In the universal stress system, where the bars is subject only to a simple tension or compression, the two most important orientation of the stress element are what? When theta is equal to 0 and 45 degree. मतलब ये हुआ कि जब मेरा थीटा जो है 0 होगा तो वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी, क्योंकि वो इसी प्लेन पे लगी हुई है यहीं पर, और थीटा 45 डिग्री है तो वहाँ मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेसेस आएंगी. तो थीटा 45 डिग्री है तो शेयर स्ट्रेस आएगी मैक्सिमम, और थीटा 0 है तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी. ये हमारा कंक्लूजन है. नाउ स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय ए स्टेट ऑफ सिंपल शेयर. मान लीजिए सिंपल शेयर मतलब ये मेरा कोई ब्लॉक है जिसमें शेयर स्ट्रेस के अलावा कोई स्ट्रेस नहीं लगी है. नो टेंशन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इज एक्टिंग, ओनली शेयर स्ट्रेस इज एक्टिंग हेयर इन दिस ब्लॉक like this is q, this is q and this is q. and now I have to find out ये मेरा जो प्लेन है जो कि यहाँ ये प्लेन है जो इसका थीटा एंगल पे है, तो मुझे इस पे नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस मालूम करनी है. उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस एलिमेंट को मैं यहाँ से काट के यहाँ प्लॉट कर दूंगा. सो ये मेरा एलिमेंट हो गया, ये थीटा एंगल होगा. इस प्लेन पे मुझे स्ट्रेसेस मालूम करनी है जो कि इस वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा, तो इस पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है और इसकी टेंजेंशियल स्ट्रेस कितनी है वो हमें मालूम है. ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. नाउ ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेसेस हो गई. ये इसको मैं हमेशा मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता हूँ क्योंकि टेंसाइल पॉजिटिव हो, तो इसको मैं ऐसे लेता हूँ, और ऊपर की डायरेक्शन में मैं लेता हूँ जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे. सो मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता हूँ. दिस इज माई PT एंड दिस इज माई PN. एक्चुअली में जो भी आएगी दैट वी विल सी, बट इनिशियली मैं इसको ऐसे ही अज्यूम करता हूँ. नाउ अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूँ अलोंग 2 डायरेक्शन, मान लीजिए मैं इसको रिजोल्व करता हूँ इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रिजोल्व करता हूँ देन व्हाट विल हैपन? सपोज आई हैव टू रिजोल्व इट इस डायरेक्शन में, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में मुझे रिजोल्व करना है इसको. तो व्हाट विल हैपन? PN इंटू AC, इसके यूनिट जो परपेंडिकुलर द पेपर जो है मैंने यूनिट थिकनेस मान लिया. सो PN को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस सरफेस एरिया से जो कि ये इसका सरफेस एरिया होगा, तो AC इंटू ये यूनिट थिकनेस अगर मैंने माना है तो इस एरिया पे जब ऐड कर रहा तो PN इंटू AC इंटू 1. सो ये मेरा एक फोर्स हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन का फोर्स मालूम हो जाएगा. अब यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस लगी है ये AB इंटू इसका जो सरफेस एरिया आएगा, दिस AB इंटू 1, दिस इज अ सरफेस एरिया Q इंटू AB इंटू 1, ये फोर्स आ जाएगा. जो कि जब ये फोर्स Q इंटू AB इंटू 1 आएगा, जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा इस डायरेक्शन में, तो ये इसका cos थीटा आएगा, इधर ये sin थीटा आ जाएगा. ये कंपोनेंट इसका यहाँ cos थीटा, इट विल बी sin थीटा. सिमिलरली ये जो Q है Q इंटू BC इंटू 1, हेयर Q इंटू BC इंटू 1, एंड इसका जब मैं कंपोनेंट लूंगा, क्योंकि अगर ये थीटा है इसका नॉर्मल ये है और इसका नॉर्मल ये है, तो ये एंगल भी थीटा आएगा. सो Q इंटू BC इंटू 1, इसका मैं ये डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लूंगा तो ये cos थीटा आएगा उसका, Q इंटू BC इंटू 1 इंटू उसका cos थीटा, ये कंपोनेंट sin थीटा आता. सो Q इंटू BC इंटू 1 इंटू cos थीटा. सो ये दोनों जो है इसकी वजह से ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे, एक ये कंपोनेंट आएगा एक ये कंपोनेंट आएगा. तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस फोर्स, सो इट विल बी PN इंटू AC इंटू 1 इज इक्वल टू दिस वन. अगर मैं इसको AC को इधर लेके डिवाइड करूंगा, Q इंटू AB अपॉन AC साइन थीटा प्लस Q इंटू BC अपॉन AC इंटू cos थीटा. नाउ AB अपॉन AC दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू cos theta, so it will be cos theta sin theta, and BC upon AC is equal to sin theta.
So it will be q into cos theta sin theta plus q into sin theta cos theta. फाइनली ये 2 टाइम्स ऑफ q into sin theta cos theta हो जाएगा, एंड इसको हम 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. So my Pn will be q sin 2 theta. ये आ जाएगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस इस केस में p q into sin 2 theta. नाउ अगर मुझे उसका टेंजेंशियल स्ट्रेसेस निकालना है तो मैं उसको अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन उसको रिजोल्व करूंगा मैं उसको. इन दैट केस आई विल रिजोल्व द फोर्सेस अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन. उस केस में क्या करेंगे कि ये जो प्लेन है मेरा जहां पर ये लगी है स्ट्रेस PT, मैं इस डायरेक्शन में रिजोल्व करूंगा. व्हाट विल हैपन, इस डायरेक्शन में जब मैं रिजोल्व करूंगा तो PT इंटू AC इंटू 1 ये आएगा, ये फोर्स जो कि मेरा इधर काम करेगा. सेकेंडली ये Q इंटू AB इंटू 1 जो कि इसकी थिकनेस है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जब मैं लूंगा अलोंग दिस वन, सो ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा. इट विल बी, ये ऐसे नीचे एक्ट करेगा. और ये Q जो कंपोनेंट है Q इंटू BC इंटू 1 जो करूंगा, इसका जब मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो ये इस डायरेक्शन में काम करेगा. तो इसका कंपोनेंट प्लस इसका कंपोनेंट ये सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दिस प्लस दिस. सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, विच विल बी इक्वल टू दिस. सो PT इंटू AC इंटू 1 विच विल बी दिस PT इंटू AC इंटू 1, ये फोर्स काम कर रहा है, प्लस में ये इसका कंपोनेंट विच विल बी Q इंटू BC इंटू 1 इंटू sin theta. This will be equal to Q into AB into, so ये Q into AB into 1, इसका कंपोनेंट जब मैं लूंगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा. सो माय दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, इसका कंपोनेंट इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट विच विल इक्वल टू दिस वन. अब मैं अगर इसको इधर लेके जाऊंगा तो इट विल बी QAB इंटू cos थीटा एंड माइनस Q इंटू BC, और उसको AC से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा. नाउ AB अपॉन AC इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू दिस साइड AB अपॉन AC इज इक्वल टू cos थीटा. So I will put this is cos theta and BC upon AC is equal to sin theta. तो ये sin theta हो जाएगा, and this will be, so this will be Q cos square theta माइनस Q sin square theta. Q को जब बाहर निकालेंगे तो Q cos square theta माइनस sin square theta होगा. सो ये cos 2 theta के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cos 2 theta मीन्स cos theta plus theta which will equal to cos theta minus sin theta and it will be cos square theta minus sin square theta. So cos square theta minus sin square theta is equal to Q cos theta. So मेरा जो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस है that will be Q cos 2 theta, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी. सो इन दैट केस ये जो मेरा स्ट्रेस आया इस यहाँ पर, ये Q cos थीटा आया और ये पॉजिटिव आया, मतलब उसका यही डायरेक्शन रहेगा जो कि मैंने अज्यूम किया है. एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू Q sin थीटा. सो इस केस में अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेता हूं, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको, ये थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो मेरा ये स्ट्रेसेस क्या आएंगे. इन दैट केस मैं जब यहाँ 45 डिग्री पुट करूंगा तो P नॉर्मल क्या हो जाएगा, इट विल बी, व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री तो ये sin 90 हो जाएगा. सो Pn इज इक्वल टू sin 90 Q हो जाएगा. मतलब थीटा जब 45 डिग्री होगा तो जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी उसकी वैल्यू Q के इक्वल हो जाएगी.
Pn will be, so that will be my maximum. Why it will be maximum? क्योंकि मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो 90, जब ये 2 थीटा 90 होगा तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, और जब ये मैक्सिमम होगी तभी ये मैक्सिमम होगी. सो ये 90 डिग्री जब होगा तब थीटा 45 डिग्री होगा. सो पी एन मैक्स इज इक्वल टू क्यू एंड इट विल बी एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ उस 45 डिग्री पे टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना आएगा, उसके लिए मैं जब यहाँ फार्मूले में 45 डिग्री पुट करूंगा तो ये पी टी इज इक्वल टू क्यू कोस 90 इज इक्वल टू 0. मतलब अगर इस तरह का स्ट्रेस सिस्टम है मेरा और थीटा 45 डिग्री है तो वहां पर जो स्ट्रेस आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस, वो मैक्सिमम आएगी, उसकी वैल्यू इस क्यू के इक्वल होगी, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस वो 0 हो जाएगी. मतलब नो टेंजेंशियल स्ट्रेस, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस. नाउ स्ट्रेस इज ड्यू टू ए स्टेट ऑफ बाईएक्सियल स्ट्रेस. ये मेरा ब्लॉक है कोई, अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में लेता हूँ तो उसके इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल स्ट्रेस P1 लगी हुई है, इसके इस डायरेक्शन में P2 लगा हुआ है. मुझे इसका कोई एक प्लेन है जो कि यहाँ थीटा पे है, उस प्लेन पे मुझे नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस निकालनी है. तो उसके निकालने के लिए व्हाट विल आई डू, इज वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, वो जो एलिमेंट है जो थीटा, ये इस एलिमेंट को हम इधर ड्रॉ कर लिया मैंने, ए बी सी, दिस इज माई ए बी सी, दिस इज थीटा. सो ये जो स्ट्रेस लगी है P1, ये मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया P1, दिस आई हैव पुट इट हेयर, एंड यहाँ पर जो स्ट्रेस लगी हुई है इसको मैंने P2 लग दिया. ये मेरा प्लेन है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस Pn और इस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस Pt, दैट आई हैव टू फाइंड आउट. उसके लिए क्या करूंगा कि ये एलिमेंट लेके मैं अब इसको रिजोल्व करूंगा अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, एंड अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन. सो अगेन यूनिट थिकनेस हम लेंगे, इस ब्लॉक की जो थिकनेस है वो हम इस डायरेक्शन में यूनिट थिकनेस लेंगे. ये जो है इसको हम 1 मान लेते हैं यूनिट थिकनेस से. सो जब मैं इसको अलोंग द नॉर्मल इस डायरेक्शन में रिजोल्व करूंगा तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल Pn दिस इंटू ए सी इंटू 1, ये फोर्स मेरा इधर एक्ट करेगा, एंड इसका जो कंपोनेंट होगा P1, ये P1 इंटू ए बी इंटू 1, P1 इंटू ए बी 1 to 1, और जब मैं इसको इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालूंगा तो P1 इंटू ए बी इंटू 1, इसका ये कंपोनेंट कोस थीटा आएगा, ये कंपोनेंट साइन थीटा होगा. सो P1 इंटू ए बी इंटू 1 इज द फोर्स. इसका मैं ये वाला कंपोनेंट रिजोल्व करूंगा, इट विल बी साइन थीटा. सो P1 इंटू ए बी इंटू 1 इंटू no, I think some mistake is there again. So I will calculate it like this. This is my P1. So P1 into AC into 1, this is my, and P1, ये फोर्स को मैं यहाँ ले जाऊंगा, दिस विल बी P1. सो ये फोर्स कैसे आएगा, P1 इंटू ए बी इंटू 1, दिस इज द फोर्स, और इसको जब मैं रिजोल्व करूंगा इस डायरेक्शन में तो ये ऐसे आएगा, इसका कंपोनेंट P1 इंटू ए बी इंटू 1, एंड दिस इज द थीटा, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा आएगा. सो इसको जब मैं रिजोल्व करूंगा तो ये कोस थीटा आएगा, एंड जो ये P2 फोर्स है मेरा, P2 इंटू बी सी इंटू 1 इज द फोर्स, ये यहाँ ऐड करेगा. जब मैं इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूंगा तो P1 इंटू बी सी इंटू 1, ये भी इधर आएगा. सो P2 इंटू बी सी इंटू 1, और इसका ये कोस थीटा आएगा, इधर साइन थीटा, ये कंपोनेंट साइन थीटा आएगा. ये नाउ
अगर मैं उसको AC से डिवाइड करूंगा बोथ साइड, सो आई विल गेट P1 इंटू AB अपॉन AC, इसको AC से डिवाइड कर दिया। नाउ AB अपॉन AC इज इक्वल टू कोस थीटा एंड BC अपॉन AC is equal to sin theta. So it will be P1 cos theta cos square theta plus P2 sin square theta. ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा। नाउ अगर मैं इसको along द टेंजेंशियल डायरेक्शन इसको मैं अगर रिजोल्व करता हूं, along दिस डायरेक्शन अगर मैं रिजोल्व करूंगा इसको along दिस डायरेक्शन, सो ये मेरा फोर्स क्या होगा, PT इंटू AC इंटू 1, ये मेरा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, प्लस में क्योंकि ये P1 इंटू AB12 ये जो फोर्स है इसका ये वाला कंपोनेंट कोस थीटा होगा, इसको इधर लेके जाएंगे, ये भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। सो दिस विल बी, ये इस साइड में आएगा P1 इंटू AB इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन रहेगा, तो मैंने इसको एक साइड ले लिया, P1 इंटू AC इंटू 1 प्लस P1 इंटू AB ये साइन थीटा। और इसको काउंटरएक्ट करने के लिए ये जो फोर्स है मेरा P2 इंटू BC इंटू 1, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा। सो P2 इंटू BC इंटू 1 इंटू कोस थीटा। सो दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। नाउ जब मैं इसको AC से डिवाइड करूंगा बोथ साइड को और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस P1 AB अपॉन AC साइन थीटा प्लस P2 BC अपॉन AC कोस थीटा। नाउ AB अपॉन AC इज इक्वल टू cos theta, so it will be P1 cos theta sin theta minus sin will be there plus P2 BC upon AC means sin theta, so मेरा ये प्लस P2 sin theta cos theta हो जाएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, सो माइनस अगर मैं sin theta cos theta कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा माइनस P1 माइनस P2 हो जाएगा। सो मैंने माइनस कॉमन लिया, सो माइनस P1 माइनस P2 साइन थीटा कोस थीटा, एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, एज वी नो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा का 2 टाइम्स होता है। सो साइन थीटा कोस थीटा मीन्स साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैंने वैल्यू जब यहाँ पुट करूंगा तो आई विल गेट PT इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस P2 बाई 2 एंड साइन 2 थीटा, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सिमिलरली जो ये इक्वेशन जो हमने यहाँ लिखी है इसको भी मैं इस फॉर्म में ला सकता हूँ, जैसे सो दिस इज माई टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। ये टेंजेंशियल स्ट्रेसेस मैक्सिमम कब होंगी, ये कब मैक्सिमम हो सकती है, जब ये साइन 2 थीटा जो है, ये 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन मैक्सिमम तभी हो सकता है जब 90 डिग्री है। जो साइन 2 थीटा जब 90 डिग्री होगा, 2 थीटा 90 होगा तो थीटा 45 डिग्री होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जब ये 1 होगा 90 डिग्री तो माइनस P1 माइनस P2 बाई 2। सो इट इज PT max is equal to P1 minus P2 by 2. This is my PT max minus P1 minus P2 by 2. ये मैक्सिमम shear stresses आ गई। Now for this value of theta is equal to 45 डिग्री, अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालनी होती तो उसके लिए मैं क्या करता, उसके लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस का जो फार्मूला है मेरा, यहाँ पर 45 डिग्री पुट कर देता। सो ये मेरा फार्मूला नॉर्मल स्ट्रेस का जो है वो ये है, P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसमें जब मैं 45 डिग्री वैल्यू पुट करूंगा, आई विल गेट
ये मेरा 1/2 आएगा, क्योंकि 1/√2 होता है, 45 डिग्री उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा। सो P1 1/2 प्लस P2 1/2 मीन्स P1 प्लस P2/2। इट मीन्स 45 डिग्री पे जहाँ पर शेयर स्ट्रेस टेंजेंट स्ट्रेस मैक्सिमम है, वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू P1 प्लस P2/2 हो गया। सो हेयर दिस इज माई नॉर्मल स्ट्रेस। और क्योंकि टेंजेंट स्ट्रेस मेरा -P1/P2 का मतलब ये होगा, जो डायरेक्शन मैंने ऊपर अज्यूम की थी वो सही नहीं है, वो नीचे की तरफ आएगी। सो ये मेरा P2 आएगा। अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूंगा, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर, ये मेरा पैरेललोग्राम होगा, इसका ये रिजल्टेंट निकल जाएगा PR। सो PR विल बी इक्वल टू P नॉर्मल स्क्वायर प्लस P टेंजेंशियल स्क्वायर। सो विद दैट आई विल गेट रिजल्टेंट स्ट्रेस। अगर रिजल्टेंट स्ट्रेसेस का मुझे एंगल निकालना है कि ये इस नॉर्मल के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दिस एंगल टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। सो PT अपॉन सो PT अपॉन P नॉर्मल, दिस PT अपॉन दिस नॉर्मल, वो मेरा tan phi देगा, जो कि phi इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द नॉर्मल। सो व्हेन स्ट्रेसेस आर नॉट लाइक, ऐसा भी हो सकता है कि जो स्ट्रेसेस हमने टेंशन अज्यूम की है, यहाँ पर ये मैंने टेंसाइल स्ट्रेसेस ली हैं, ये भी टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो के मान लीजिए ये मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस होता, ऐसा भी हो सकता है ये कंप्रेसिव होता। उस केस में क्या करता, सेम फार्मूला मेरा अप्लीकेबल रहेगा। ओनली थिंग इज दैट कि अगर वो कंप्रेसिव है P2 इन केस, तो उसको हम माइनस ले लेंगे, और P1 क्योंकि टेंसाइल है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब अगर टेंसाइल स्ट्रेसिस है तो दैट वी विल टेक इज पॉजिटिव, और कंप्रेसिव स्ट्रेस है so I will take it is negative. So I will not do anything, but I will put simply tensile stress as a positive and compressive stress in the negative. So P1 पॉजिटिव हो जाएगा, P2 नेगेटिव, उस फार्मूले में हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, simply that will works. So when stresses are not like that, is P is like this, in that case change the sign accordingly, Pn in the formula like this. तो ये मेरा जो फार्मूला है इसमें मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। नाउ टू परपेंडिकुलर स्ट्रेस दैट इज नॉर्मल अकम्पेंड विद ए सिंपल सेट ऑफ स्ट्रेसेस। एक्चुअली में जब क्या होता है कि हमारा इस तरह का प्लेन होता है, जिसमें शेयर स्ट्रेस भी ऐड करती हैं। सो इन दिस प्लेन यहाँ मेरा टेंसाइल स्ट्रेस P1 है, इसके साथ इट इज अकम्पेंड विद शेयर स्ट्रेसेस ऑल Q। सो यहाँ मेरा P2 जो इस प्लेन पे लगा हुआ है, इसके साथ भी शेयर स्ट्रेसेस Q लगी हुई है। सो हेयर परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेसेस एज वेल एज सिंपल शेयर भी लगी हुई है। इन दैट केस अगर मुझे किसी प्लेन पे जो कि इस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, अगर मुझे इस प्लेन के स्ट्रेसेस निकालती होती है कि इसके नॉर्मल में कितनी स्ट्रेसेस आएगी एंड अलोंग द टेंजेंशियल कितना स्ट्रेसेस आएगी, वो अगर मुझे मालूम करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा, सेम कंसेप्ट में लगाऊंगा। व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली, जैसे कि मैंने पहले किया है, मैं इसका एक एलिमेंट लूंगा, ये वाला, इस एलिमेंट को मैं यहाँ ड्रॉ बना दूंगा, ये मेरा एलिमेंट होगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द प्लेन, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मेरी Pn है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस मैं ऊपर की तरफ लूंगा ताकि इनिशियली मैं इसको पॉजिटिव एज्यूम करके चलता हूँ। सो जो एंगल ये थीटा बना रही है, क्योंकि इसका नॉर्मल ये है और इसका नॉर्मल ये, सेम एंगल विल बी देयर। अब इस पे जो शेयर स्ट्रेस इज, दिस इज P1, यहाँ पर P2, ये Q स्ट्रेस लगी, ये Q स्ट्रेसेस। नाउ आई विल, ये जो मेरा एलिमेंट है मेरा, सिंपली मैं इसको रिजोल्व करूंगा। जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा, अगेन इसका नॉर्मल जो थिकनेस है परपेंडिकुलर टू पेपर, अब मैं उसको यूनिट थिकनेस मान लेता हूं। ये मेरी थिकनेस जो है दैट इज यूनिट 1। सो जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा अलोंग दिस वन,
इसके नॉर्मल पे जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा, सो व्हाट विल आई गेट, दिस इज पी एन इंटू इसका सरफेस एरिया ए सी इंटू 1, ये मेरा फोर्स इधर डायरेक्ट काम करेगा। इसको रिजोल्व करूंगा तो ये मेरा P1 फोर्स है, दिस P1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए बी इंटू 1, एंड ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। सो दिस इज P1 इंटू ए बी इंटू 1, इसका ये वाला कंपोनेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में लूंगा, दैट इज द कॉस ऑफ दिस एंगल। सो ये मेरा फोर्स आ गया, प्लस दिस P2 इंटू बी सी इंटू 1 इंटू ये भी थीटा बना रहा है इसके साथ, क्योंकि ये अगर ये थीटा है, यही लाइन एक्सटेंड है, ये एंगल भी थीटा, तो इसका ये साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। सो P2 इंटू बी सी इंटू 1 इंटू दिस इज कोस, दिस इज साइन, तो ये दोनों कंपोनेंट इधर काम करेंगे इसके अपोजिट में। सो दिस इज P2 इंटू बी सी इंटू 1 इंटू साइन थीटा, प्लस ये जो Q है, दिस Q इंटू ए बी इंटू 1, एंड इस Q को मैं उठा के अगर यहां ले आता हूं तो दिस Q इंटू ए बी इंटू 1 इंटू साइन ऑफ थीटा। सो दिस क्यू बी इंटू ए बी 1 2 इंटू, अगर मैं इसको यहां पुटअप करता हूं, Q इंटू ए बी इंटू 1, इसका ये कंपोनेंट भी मेरा साइन थीटा आएगा, एंड अगेन दिस Q इंटू बी सी इंटू 1, इसको जब मैं यहां रिजोल्व करता हूं, सो दैट विल बी Q इंटू, सिमिलरली तो ये उसका कोस थीटा आ जाएगा, Q इंटू बी सी इंटू 1, इस डायरेक्शन में जब लूंगा तो Q इंटू बी सी इंटू 1 इंटू कोस थीटा। अब मैं अगर इसको ए सी से डिवाइड करूंगा बोथ साइड को, सो दिस विल बी पी एन इज इक्वल टू P1 ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, एंड ए बी अपॉन ए सी, एंड बी सी अपॉन ए सी। नाउ दिस ए बी अपॉन ए सी इज, this AB upon AC is equal to cos theta, so it will become P1 cos square theta plus P2 BC upon AC is equal to sin theta. So sin theta means sin square theta, and plus Q AB upon AC, again AB upon AC is equal to cos theta, so it will be Q cos theta sin theta plus Q BC upon AC is equal to sin theta. So it will be Q sin theta cos theta. I will get this. So this is P1 cos square theta plus P2 sin square theta plus Q sin cos theta sin theta plus Q sin theta cos theta. Now P1 cos square theta plus P2 sin square theta plus Q, अब ये मेरा sin theta plus sin theta 2 sin theta हो जाएगा, and 2 sin theta means sin 2 theta. So ये मेरा फार्मूला आ जाएगा। Now this will be my formula. नॉर्मल स्ट्रेस इस केस में जो आएंगी P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 sin स्क्वायर थीटा प्लस Q sin 2 थीटा। अब मैं इसी फार्मूला को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लाइक दिस। क्योंकि P1 cos स्क्वायर थीटा जो है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा, एंड दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, सो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो इट इज cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह में अगर मैं ये पुट करता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा मीन्स cos थीटा प्लस cos थीटा,
एंड डिवाइडेड बाई 2। सो ये होगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज आल्सो कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि कोस स्क्वायर थीटा जो ये है इसकी जगह मैं 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 भी लिख सकता हूं यहाँ पर। एंड सिमिलरली 1 ये सो साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा कर सकता हूं, क्योंकि ये 1 माइनस कोस 2 थीटा जो है इसकी वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब ये होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, प्लस में क्यू साइन 2 थीटा। इट मीन्स कि जब मैं इसको ये पुट करूंगा, so it will become p1 1 plus cos 2 theta plus, so again p1 upon 2 p1 by 2 plus p2 by 2। so इसको जब मैं कॉमन करूंगा तो p1 plus p2 by 2 कह सकता हूं मैं। एंड अगेन cos 2 थीटा जो है इसको जब मैं कॉमन लूंगा, इसको जब मैं रिजल्ट करूंगा लाइक दिस, इट विल बी p1 by 2 plus cos 2 थीटा into p1 by 2 plus p2 by 2 and cos 2 theta into p2 by 2 plus q sin 2 theta। सो इसमें p1 प्लस p1 by 2 और p2 by 2 को मैं p1 प्लस p2 by 2 कह सकता हूँ। एंड प्लस cos 2 थीटा को जब मैं कॉमन लूंगा तो p1 माइनस p2 by 2 आ जाएगा। सो एंड q sin थीटा, मतलब ये हुआ कि मैं उसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जो मेरा ये फॉर्म है नॉर्मल स्ट्रेस का, ये जो फार्मूला था, आई कैन आल्सो राइट इट इन दिस फॉर्म। ये एक मोर यूजफुल फॉर्म में आ गया। सो ये मेरा फार्मूला होगा जिसकी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो पी नॉर्मल इज इक्वल टू p1 प्लस p2 बाई 2 प्लस p1 माइनस p2 बाई 2 कोस 2 थीटा प्लस q साइन 2 थीटा। ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला है। इन केस अगर इस तरह का स्ट्रेस सिस्टम है जिसमें शेयर स्ट्रेस भी लगी हुई है और दोनों प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस भी लगी हुई है, इन दैट केस नॉर्मल स्ट्रेस उसके किसी भी प्लेन पे मुझे निकालनी है जो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उसका ये फार्मूला है, दिस फार्मूला। एंड टेंजेंशियल से स्ट्रेस निकालने के लिए जो फार्मूला है उसके लिए मुझे जब मुझे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस निकालनी है दिस P2, सो आई विल रिजोल्व द फोर्सेस अलोंग दिस प्लेन। इसके प्लेन में मैं इसको रिजोल्व करूंगा। उसके लिए क्या होगा, PT इज एक्टिंग ऑन दिस 8c/1 इन दिस डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। एंड ये जो P1 कंपोनेंट आएगा जो कि मेरा यहाँ एक्ट कर रहा है P1 इंटू AB/1, और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लूंगा ये कोस आएगा, ये इसका साइन थीटा के कंपोनेंट पे आएगा। सो उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा, तो मैंने उसको इस साइड में लिया है। सो प्लस P1 इंटू AB/1 इंटू साइन थीटा। एंड ये जो मेरा Q लगा हुआ है Q इंटू BC/1, इसका कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में आएगा, Q इंटू BC/1, Q इंटू BC/1 इज द फोर्स, एंड उसका जो मैं कंपोनेंट लूंगा सो दैट विल बी साइन ऑफ थीटा। ये तीनों फोर्स मेरे ऊपर की तरफ, इसका कंपोनेंट भी इधर जाएगा, इसका कंपोनेंट भी इधर, और इसके इज इक्वल टू P2 इंटू BC/1
और उसका कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, Q इंटू बी सी इंटू 1 इंटू कोस थीटा. सो दिस विल बी माई, अगेन ये जो Q है, Q इंटू ए बी इंटू 1, और उसका कंपोनेंट जब मैं रिजोल्व करूंगा यहाँ पर एक्ट आएगा, सो वो नीचे की तरफ जाएगा, दैट विल बी कोस थीटा. देन इसको मैं P1 को इस साइड में लेके जाऊंगा, Q को उस साइड में लेके जाऊंगा, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. एंड आई विल डिवाइड इट both side by AC. So I will get this one, P1 AB upon AC, this and this. Now, as we know, AB upon AC is equal to, this AB upon AC is equal to cos theta. So it will be cos theta. And BC upon AC is equal to, this BC upon AC is equal to sin theta. So it will be my sin theta. Again, BC upon AC is equal to sin theta. एंड ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कोस थीटा. जब हम इसको रिजोल्व करेंगे तो P1 कोस थीटा साइन थीटा माइनस Q साइन स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस Q कोस स्क्वायर थीटा. देन अगेन मैं इसको और इसको जब कॉमन लूंगा और माइनस बाहर निकालूंगा तो P1 माइनस P2 बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा. सो साइन थीटा कोस थीटा को कॉमन मैंने लिया, so it will be P1 minus P2 and sin 2 theta by 2, as sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. So sin theta cos theta is equal to sin 2 theta divided by 2. So value मैंने यहाँ पुट की, so I will get this, and Q cos square theta minus sin square theta. Cos square theta means cos theta minus sin square theta means sin theta, and this will be cos 2 theta. So ये मेरा फार्मूला आ गया. उसमें जब मैं इसको एक ब्रैकेट में पूरे को लूंगा और माइनस साइन को बाहर निकाल लूंगा, इट विल बी P1 माइनस P2 बाई 2 साइन 2 थीटा एंड इट विल बी माइनस Q कोस थीटा. So ये मेरा फार्मूला आ गया. दिस इज माई फार्मूला. सो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस का मेरा फार्मूला है, एंड दिस इज माय फार्मूला फॉर नॉर्मल स्ट्रेसेस. दिस इज फार्मूला फॉर नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड दिस इज फार्मूला फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस. इसको याद कैसे करेंगे कि नॉर्मल में नॉर्मल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस यहाँ माइनस आएगा कोस 2 थीटा प्लस Q साइन 2 थीटा. एंड जब टेंजेंशियल स्ट्रेसेस निकालेंगे तो ये पार्ट हम बाहर ये इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये वाला पोर्शन को देखेंगे. इसमें यहाँ पर ओवरऑल माइनस लिखा जाएगा, माइनस बाहर, और पूरे को अंदर लेके P1 माइनस P2 बाई 2 कोस 2 थीटा की जगह साइन 2 थीटा आ जाएगा, इस प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा, और इस साइन 2 थीटा की जगह कोस 2 थीटा आएगा, एंड ओवरऑल माइनस बाहर आएगा. तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं. दिस इज द वे. नाउ इसमें इट मे बी पॉसिबल दैट इफ P1 एंड P2 आर अनलाइक, मीन्स P1 टेंसाइल हो सकता है एंड P2 कंप्रेसिव हो सकता है. सो उन दैट केस में P1 को हम पॉजिटिव लेंगे टेंसाइल को, एंड P2 जो कंप्रेसिव है तो P2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे इसी फार्मूला में, एंड दैट विल वर्क्स. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर प्लेन स्ट्रेसेस. ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये है कि ये मेरा प्लेन स्ट्रेस सिस्टम है, यहाँ पर P1 है, ये Q लगा हुआ है, और मुझे इस प्लेन पे स्ट्रेसेस दैट आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो मैंने ये एलिमेंट लिया, ये थीटा एंगल है, इस प्लेन पे मैंने
नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाली, इसी प्लेन में टेंजेंशियल स्ट्रेसेस मैंने कैलकुलेट कर ली, जिनका फार्मूला ये है। सो पी नॉर्मल इज इक्वल टू P1 प्लस P2/2 प्लस P1 बाई P2 कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, एंड क्यू में ये माइनस आएगा, ओवरऑल इसको लेंगे P1 माइनस P2/2 साइन 2 थीटा, ये प्लस माइनस ये क्यू साइन की जगह कोस आ जाएगा। सो दिस इज माय फार्मूला फॉर पी नॉर्मल एंड पी टेंजेंशियल। इस प्लेन पे पी नॉर्मल जो है वो ये है, पी टेंजेंशियल उसका ये फार्मूला। मान लीजिए ये मैं इस प्लेन को ऐसे मान के चलता हूं कि अगर मैं इस पी एन को P1 मान लो, P1 डैश मान लो, पी नॉर्मल को P1 डैश मान लूँ और P2 को Q डैश मान लूँ, मान लीजिए मैं, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ये मेरा कोई प्लेन है जिस पे P डैश P1 डैश फोर स्ट्रेस काम कर रहा है और वहां पर जो Q डैश है वो P2 की इक्वल है, और ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है। मतलब ओवरऑल इस एलिमेंट को अगर मैं विजुअलाइज करूं तो आई कैन से कि मैंने इसको रोटेट कर दिया है बाय दिस एंगल थीटा। सेम मेरा यही एलिमेंट यहां पर है, ओनली थिंग इज दैट कि मैंने इसमें इसको इस तरह से रोटेट किया है कि ये थीटा रोटेट कर दिया। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये मेरा स्ट्रेस आ जाएगा, जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसिस जो Pn था उसको मैंने P1 डैश मान लिया और इसको Q डैश मान लिया। सो अगर मैं ये x एक्सिस है और इसको मैं x डैश मानूंगा, ये मेरा y एक्सिस है, इसको इसी प्लेन के अगर मैं इस एलिमेंट को इस तरह से मैं बनाऊं तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगी इसको मैंने y एक्सिस बोल दिया। मतलब ये हुआ यही एलिमेंट जो x एक्सेस, ये x और y था, मैंने इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो मैं इसको इस तरह से आई कैन विजुअलाइज इट कि ये नॉर्मल स्ट्रेस जो थी दैट इज P1 डैश एंड दिस इज Q1 डैश। सो सिंपली इसको मैं ऐसे मान सकता हूं। इन दैट केस अगर मुझे ये P2 डैश की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर P1 ये वैल्यू इस प्लेन पे भी कोई स्ट्रेस तो आएगी, उसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो आई विल पुट ये जो यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगी, अगर जो थीटा में जो स्ट्रेस है ये इसका 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, क्योंकि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है थीटा है, अगर हम इसको 90 पे इस प्लेन का नॉर्मल इसके साथ थीटा बना रहा है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो ओवरऑल एंगल है ये थीटा प्लस 90 हुआ है। तो इस प्लेन पे जो स्ट्रेस आएगी उसमें मैं थीटा की जगह अगर थीटा प्लस 90 कर दूंगा तो इस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आएगी वो मुझे मालूम पड़ जाएगी। सो यहाँ पर स्ट्रेस निकालने के लिए इसी इक्वेशन में मैं थीटा की जगह थीटा प्लस 90 पुट कर दूंगा। सो आई विल गेट स्ट्रेस, यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगी प्लस यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगी एंड यहाँ पर जो टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगी वो मैं निकाल सकता हूँ विद दिस इक्वेशंस। सो फॉर दैट आई विल पुट similar way the normal stress P2 acting on the y1 face of the rotated element can be found by putting theta plus 90 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में जब पुट करूंगा, सो P नॉर्मल हो जाएगा मेरा P1 प्लस P2/2 माइनस ये कोस 2 थीटा की जगह जब मैं वैल्यू पुट करूंगा कोस 2 थीटा की जगह थीटा प्लस 90 हो जाएगा। सो इट मीन्स ये हो जाएगा कोस 180 डिग्री प्लस 2 थीटा, एंड कोस 180 डिग्री प्लस 2 थीटा जो है दैट विल बी माइनस कोस 2 थीटा। सो ये जो वैल्यू प्लस है ये माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगी, एंड साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जो है जब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा साइन 2 थीटा मतलब हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 90 एंड इट विल बी साइन 180 डिग्री प्लस 2 थीटा एंड दिस विल बी माइनस 2 साइन थीटा आ जाएगा। तो ये भी मेरा माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो जो ये जो स्ट्रेस P2 डैश जो आएगी
जो कि ये थीटा को 90 डिग्री पे मैंने फर्दर रोटेट कर दिया, उसकी वैल्यू जब पुट करूंगा आई विल गेट दिस इक्वेशन। इससे मुझे ये जो स्ट्रेस है इस प्लेन पे वो मालूम पड़ जाएगी। एंड उसके लिए ये मेरा दिस ये हो जाएगा। नाउ अगर मैं ये स्ट्रेस, ये जो P1 डैश है विच इज इक्वल टू P नॉर्मल एंड P2 डैश, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस इन दोनों का जब मैं सम करूंगा P1 डैश प्लस P2 डैश, P1 डैश इज इक्वल टू दिस वन एंड P2 डैश इज इक्वल टू दिस वन, दिस प्लस दिस अगर मैं जब करूंगा व्हाट आई विल गेट, जब मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सम करूंगा जब मैं इसको और इसको सम करूंगा P1 डैश प्लस P2 डैश इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आ जाएगा। उसमें दिस P1 प्लस P2 बाई 2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दिस वन एंड दिस वन विल कैंसिल ईच अदर, ये दोनों कट जाएंगे, दिस विल आल्सो कैंसिल ईच अदर। तो फाइनली ये इक्वेशन आएगी। व्हाट दिस इक्वेशन सेज कि P1 डैश प्लस P2 डैश is equal to P1 plus P2. What does it mean? It means कि ये जो स्ट्रेस P1 डैश जो कि मेरी आई है इसका सम प्लस इसका सम इज इक्वल टू ओरिजिनल जो स्ट्रेस यहाँ लगी हुई थी P1 प्लस P2 बाई डैश। मतलब इससे ये होगा अगर एलिमेंट को हम रोटेट भी कर देंगे तो जो सम आएगा दोनों स्ट्रेसेस का जो कि 90 डिग्री के प्लेन्स में है, दिस P1 प्लस P2 बाई 2, इनका जो सम होगा दैट विल बी, जब रोटेट करने के बाद दोनों स्ट्रेस आएंगे P1 डैश प्लस P2 डैश, उन दोनों का सम इस सम के इक्वल होगा। मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। The sum of normal stresses acting on perpendicular faces of a plane stress element is constant and independent of the angle. हम उसको कितना भी रोटेट कर लो उनका सम कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो मेरी इक्वेशंस हैं इसको हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस बोलेंगे। ये जो इक्वेशंस हैं दीज आर माय ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस। जब हमने इस स्ट्रेस को रोटेट किया एलिमेंट को और इसको हमने P1 डैश P2 डैश माना तो ये दीज आर द ट्रांसफॉर्म स्ट्रेस कंपोनेंट फ्रॉम वन सेट ऑफ एक्सिस ए एक्सिस टू अनदर सेट ऑफ एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पे उसको रोटेट कर दिया तो इसको x1 डैश एंड y डैश पे जो स्ट्रेसेस हैं इनको ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस बोलते हैं और उन दोनों स्ट्रेसेस का जो समय दैट विल बी कांस्टेंट। सो नाउ देयर इज ए वन एग्जांपल which will further illustrate the concept which I have explained here. So now this is my stress element and these are the stresses. On this phase 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस काम कर रही है, इधर 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर कर रही है। ये शियर स्ट्रेस है 30 न्यूटन mm का, इस तरह से ये लगी हुई है। एंड एक कोई प्लेन है जो कि इसका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। अगर मुझे उस पर स्ट्रेसेस निकालनी है लाइक दिस, ये मेरी ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस हो गई। इस प्लेन पे जो मैंने निकाला है स्ट्रेस, इसका नॉर्मल जो आएगा P नॉर्मल एंड PT, इसको मान लिया मैंने P1 डैश एंड P2 डैश मान लिया। इस पे जो भी स्ट्रेसेस यहाँ आएगी इसको P2 डैश ये मैंने मान लिया, ये Q डैश। सो P नॉर्मल विच इज P1 डैश इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 बाई P2 बाई 2 माइनस cos 2 थीटा एंड Q sin थीटा। ये फार्मूला हमने अभी एक्सप्लेन किया है। इसमें थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री पुट कर देंगे। एंड हेयर बोथ दी स्ट्रेसेस आर, क्योंकि ये मेरी ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस भी मेरी टेंसाइल है तो ये मैं पॉजिटिव लूंगा। इस फार्मूले में मैं पुट कर दूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव रहेंगी। एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये थीटा मेरा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये थीटा भी पॉजिटिव लूंगा मैं। जब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा cos 90 sin 90, सो फाइनली आई विल गेट P नॉर्मल विच इज इक्वल टू P1 डैश, ये 112.5 न्यूटन
पर एम स्क्वायर, ये स्ट्रेस आ गई मेरी, दिस वन। एंड पी टी इज इक्वल टू क्यू डैश, ये जो टेंशन स्ट्रेस इस प्लेन पे जो मैं निकालूंगा, वो जब मैंने निकाला देन इट विल बी माइनस ऑफ दिस, ये एंड P1 माइनस P2 बाई 2, कोस की जगह साइन आएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, एंड Q साइन की जगह कोस आएगा। सो दिस विल बी माई फार्मूला, P1 माइनस P2 बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा प्लस माइनस Q कोस 2 थीटा। When I put the value of theta 45 here, I will get this value, which is equal to माइनस 37.5। माइनस 37.5 का मतलब ये हुआ कि जो पीटी में पॉजिटिव लेता ऊपर की तरफ, वो ऊपर ना होकर नीचे की तरफ है। सो दिस इज माई टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्यू डैश मैंने माना 37.5। सो ये मेरी स्ट्रेसेस यहाँ पर आ गई हैं। अगर मुझे इसका स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा? सेम जो ये स्ट्रेस यहाँ लग रही है वो सेम यहाँ आएगी। 112.5 इधर है तो ये है, अगर ये इधर लगा हुआ है तो ये इधर आएगा। एंड अगर मुझे इस प्लेन पे निकालना है तो उसके दो तरीके हैं। वन तरीका ये है, वन फॉर्मूला, कि इस प्लेन पे निकालने के लिए मैं थीटा प्लस 90 इस इक्वेशन में पुट अप कर दूंगा। व्हेन आई पुट थीटा प्लस 90 इन प्लेस ऑफ थीटा, आई विल गेट दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगी वो मैं मालूम कर सकता हूँ यहाँ पर। सो फॉर दैट आई विल पुट थीटा प्लस 90। अदरवाइज उसका एक और तरीका है कि एज वी हैव डिस्कस्ड कि ये स्ट्रेस P1 डैश 112.5 ये टेंसाइल है, तो ये P2 दिस स्ट्रेस प्लस दिस स्ट्रेस जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमने देखा, इसका और इसका सम दैट शुड बी इक्वल टू P1 प्लस P2। सो 120 प्लस 45। तो इससे मैं अगर P2 की वैल्यू निकालूंगा तो 165 माइनस 112.5। सो इससे मैं निकाल सकता हूं, ये आ जाएगा मेरा ये 52.5 प्लस आएगा। सो 52.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये टेंसाइल आई हैव कैलकुलेटेड। सो इट इज वेरी सिंपल। अगर ये क्यू इधर है तो ये इधर आएगा, इसको इधर रोटेट कर रहा है। अगर इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इधर लगेगा, उसके लिए दिस विल बी लाइक दिस एंड द क्यू वैल्यू विल बी सेम। So this is all done from my side. Thank you very much for listening me. Thank you.